Good evening, everyone. Hope you people are having a nice weekend. So, people who are viewing contents of my channel for the first time, you people can always go to my playlist section and you can see different playlists for sectoral analysis, stock specific analysis, post market report. So, if you go inside sectoral analysis playlist, you will get Nifty versus Nifty Bank, Nifty versus Nifty Infra, Nifty versus Nifty Reality. Okay. So few of my subscribers have requested me to make a video on Nifty Metals. Okay, so this particular video is for Nifty versus Nifty Metals. So let us not waste too much time and let me share my screen. Okay, Nifty Metals, very interesting sector. So what I have done is, so let me share. I hope you are able to see it. Yeah. So what I have done is I have collated some stocks of different metals. Okay, like metals means we have zinc, we have copper, we have aluminium, right? We have steel, we have coal. Adani Enterprises is also one of the leading stocks of Nifty Metal Index. Okay, in fact, it has the largest market capital, free float market capitalization. तो आप लोग जो नया देख रहे हो ये मेरा सेक्टोरल एनालिसिस का वीडियोस उन लोगों को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे ये कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, जो लाइट ग्रीन है वो है इन कंपैरिजन टू निफ्टी, जो ऑरेंज कलर है वो है इन कंपैरिजन टू निफ्टी, और ये डीप रेड और डीप ग्रीन जो है वो है इन कंपैरिजन टू निफ्टी, नॉट निफ्टी इंफ्रा, सॉरी, दिस विल बी निफ्टी metals. Okay, so let me do this correction. So this will be Nifty Metal. ठीक है, so this will, तो ये जो डीप रेड और डीप ब्लू आप देख रहे हो ये निफ्टी मेटल के करस्पॉन्डिंग ये जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है उसका कैसा आरएसआई है, उसका वीकली मूविंग एवरेज, मंथली मूविंग एवरेज और डेली मूविंग एवरेज के करस्पॉन्डिंग कंपैरिजन में वो कैसा लग रहा है, और आरएसआई मोमेंटम वाइज कैसा लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी मेटल इंडेक्स, वो मैंने कलर कॉम्बिनेशन के थ्रू हाईलाइट किया। तो एक चीज आप देख सकते हो यहाँ पे कि रेड बहुत ज्यादा दिख रहा है कंपेयर टू ग्रीन। तो इसका मतलब क्या है, जो बड़ा बड़ा जो स्टॉक्स है ना ये सेक्टर का निफ्टी मेटल के अंदर, वो सब स्टॉक relative to the index, it is actually lower or weaker in momentum. So, which is a good thing for long-term investors. You know, जो long-term investors है, जो metal sector में अभी तक entry नहीं कर पाया है, people who do not have exposure to metal sector, have not purchased any stocks in metal sector. So they have good opportunity here because actually the big stocks like Hindustan Zinc, JSW Steel, Hindalco, Hindustan Copper, Adani Enterprises, okay, there are a lot of red color over here. See, all of these stocks, around 4 out of the 6 stocks, are actually weaker in momentum as well as when I compare it to the daily moving average. ठीक है, डेली मूविंग एवरेज देखो इधर भी अबव 20 EMI है, इधर भी अबव है, ये बिलो है। ठीक है, ये तीनों अबव 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 है, बट सिंस द आरएसआई इज वीकर सो दैट्स व्हाई आई हैव कलर्ड देम एज रेड। ठीक है, तो मोमेंटम वाइज what I can conclude is Adani Enterprises, Hindustan Zinc, JSW Steel and Hindalco, all four are weaker compared to the headline index which is Nifty Metal. ठीक है, this is good for long term investment perspective। मतलब इन लोगों का अपसाइड जो है ना वो अभी तक काफी अच्छा पोटेंशियल है अपसाइड जाने का। आपका निफ्टी का और ये जो दो नीचे वाला कलर है ये है निफ्टी मेटल के साथ निफ्टी का कंपैरिजन। अभी निफ्टी मेटल्स का आप अगर इंडेक्स मोमेंटम देखोगे, then you can see is what you can see monthly RSI is lower than Nifty. Weekly RSI again it's slightly lower than Nifty। ठीक है, मूविंग एवरेजेस ये ऊपर ही है 20 मूविंग एवरेज का। डेली RSI जो है वो निफ्टी से ज्यादा है। मतलब and as far as the daily chart is concerned, the Nifty Metal is a stronger index than Nifty. But as far as the medium term and long term chart is concerned, so Nifty Metal अभी भी थोड़ा weak है compared to Nifty। ठीक है, जो मोमेंटम है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मोमेंटम में। बट जो लोग लंबा अवधि का मतलब वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, प्रोबेबली दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, अगर वो थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है इंडेक्स। एंड पर्टिकुलरली अगर मैं इंडिविजुअल स्टॉक, बिकॉज निफ्टी मेटल का कोई ईटीएफ नहीं है कि आप पूरा इंडेक्स को खरीदोगे। ठीक है, आप अगर इंडिविजुअल स्टॉक में खरीदते हो या कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो जो मेटल, ये सब मेटल स्टॉक्स में, कमोडिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, तो आप लोगों के पास डिसेंट अपॉर्चुनिटीज है।
because if I see Adani Enterprises, all these RSIs are below 60. ठीक है, this is good buying opportunity. यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक देखो, all the RSIs are below 60. JSW Steel वीकली एंड मंथली 61, 62. तो मतलब बुलिश जोन में है, लेकिन उतना भी मतलब एक्सप्लोसिवली बुलिश नहीं है, ये आराम से 70 तक जा सकता है. डेली 58.2, 60 के नीचे है. हिंडाल्को मंथली आरएसआई 60 के नीचे है. ठीक है, वीकली और डेली जस्ट 60, 61. तो यहाँ पे भी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बिकॉज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म जो आरएसआई होता है वीकली मंथली, वो हम लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी में देखा है 70, 80 तक भी जाता है. तो आप सोच सकते हो कि ये 60 to 61 अगर 80 तक चला जाता है तो स्टॉक प्राइस में कितना बड़ा रिफ्लेक्शन होगा उसका. मे बी 25% रिटर्न मिल जाएगा यहाँ से. कोल इंडिया एंड हिंदुस्तान कॉपर only two stocks which actually are outperforming the index Nifty Metals among all these big six. ठीक है, जो outperform कर रहा है निफ्टी मेटल इंडेक्स को. तो ये दोनों स्टॉक में शायद थोड़ा करेक्शन आने के बाद ही एंटर करना चाहिए. स्पेशली कोल इंडिया बहुत ही ज्यादा, मैं बोलूंगा 76, 86. ठीक है, 70. तो ये थोड़ा ओवरबॉट और थोड़ा स्ट्रेच्ड है कोल इंडिया. इसको करेक्शन करो, करेक्शन में खरीदना. अभी आप लोग अगर मेटल सेक्टर में एंट्री करना चाहते हो तो लुक एट द 4 रेड कलर्ड वंस, क्योंकि ये सब फंडामेंटली स्ट्रांग भी है ये सब स्टॉक्स. हिंदुस्तान कॉपर भी इंटरेस्टिंग है. इसका डेली आरएसआई जो है ये थोड़ा कम है निफ्टी मेटल इंडेक्स से, लेकिन वीकली और मंथली ऊपर है. मतलब इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, और डेली आरएसआई जो है वो थोड़ा मतलब कंसोलिडेशन, मतलब क्या बोलूं मैं, बुलिश जोन में ही, बहुत बुलिश जोन में है 65. बट इट इज जो वीकर इन कंपेरिजन टू निफ्टी मेटल इंडेक्स. ठीक है, तो दैट मीन्स प्रोबेबली इन द लास्ट 1.5 मंथ्स प्रोबेबली ये स्टॉक ना अंडर परफॉर्म किया होगा, इसलिए डेली आरएसआई थोड़ा वीक हो गया है. तो ये स्टॉक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है मेरे ख्याल से, बिकॉज इसका अगर लॉन्ग टर्म में देखूंगा वीकली एंड मंथली इट्स लुकिंग वेरी बुलिश. बट डेली में थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी मेटल इंडेक्स को, कि यहाँ पे अच्छा एक एंट्री मिलने का मौका दिख रहा है मुझे शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले के लिए. एंड बाकी अदानी एंटरप्राइजेस, हिंदुस्तान जिंक, जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को, ऑल आर लुकिंग वेरी गुड फ्रॉम लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव. अपसाइड मुझे दिख रहा है काफी. यहाँ पे आरएसआई जो है 70, 80 तक भी जा सकता है, हम लोगों ने देखा है. इंडेक्स लेवल में 80 तक जा सकता है. तो आप देख सकते हो कोल इंडिया का डेली आरएसआई 87 तक चला गया है. तो ये चारों का भी जा सकता है. Right, there is every, because technically, if once good stock, fundamentally strong stock is able to go, then some kind of news happens, some kind of sectoral rotation happens. People will inflow money into these sectors and they may fly. तो आप सुने थे 25-30% रिटर्न भी मिल सकता है आप लोगों को. तो अभी मैं थोड़ा कंपेरेटिव परफॉर्मेंस में आऊंगा. निफ्टी मेटल्स, आप देखो ऑल द 4 टाइम फ्रेम्स में निफ्टी मेटल इज ग्रेटर देन रिटर्न्स, रिटर्न्स आर ग्रेटर देन निफ्टी. ठीक है, तो इट्स आउट परफॉर्मिंग सेक्टर निफ्टी मेटल, इसमें कोई डाउट नहीं है. आउट परफॉर्मिंग सेक्टर में आप लोगों को कुछ स्टॉक्स मिल रहा है बड़ा मार्केट कैप वाला, लार्ज कैप स्टॉक्स ऑलमोस्ट, जो आप लोगों को मतलब थोड़ा वीक मोमेंटम में मिल रहा है इन कंपेयर टू द ओवरऑल इंडेक्स. ठीक है, एंड उसमें से हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान कॉपर स्पेशली एक स्टॉक आपको मिल रहा है जिसका मंथली और वीकली बहुत स्ट्रांग दिख रहा है अभी भी, लेकिन डेली में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी मेटल इंडेक्स. तो यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म में अच्छा मोमेंटम प्ले बन सकता है. कोल इंडिया बाय ऑन करेक्शंस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द अदर 5, ठीक है, लुक्स टू बी एक्सेलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, टेक्निकल, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ कोर्स आप लोग चेक करना. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल रिसर्च करना बहुत जरूरी है. तो आप लोग मेरा मनी कंट्रोल का जो रिसर्च का मैं ये किया था, म्यूचुअल फंड का रिसर्च का मैं वीडियो जो बनाया था वो देखना जरूर, वहां पे आप लोगों को दिखेगा. बट दैट वीडियो वाज फॉर म्यूचुअल फंड, बट सिमिलरली यू कैन सर्च फॉर स्टॉक्स ऑल्सो. ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च ऑफ स्टॉक्स ऑल्सो. So that's my point of view on Nifty Metal Index. Hope you people like this and format and this kind of analysis. Keep posting and keep sharing my content. Thank you.